الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون ووددت انا قد رأينا اخواننا. قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي واخوان الذين لم ياتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل كهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرضهم على الحوض. رواه مسلم. وضو کے فضائل کے سلسلے کی حدیثوں کا بیان جو گزشتہ ہفتے شروع کیا گیا تھا، اسی سلسلے کی ایک حدیث، ایک بےحد اہم حدیث جو صحیح مسلم کی ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کا بیان کیا ہے، اور اس ضمن میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے بے حد مفید بن سکتی ہے اگر ہم اس کے اندر غور کریں اور اپنانے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ ہے، قبرستان ہے، یعنی بقی آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ آپ کے بعض صحابہ تھے. آپ وہاں گئے تو جو طریقہ ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، یہ آپ نے وہاں پڑھا. ان کو سلام کیا جو اس قبر کے اندر مدفون ہیں، وہ لوگ، وہ صحابہ جو اس دنیا سے جا چکے تھے اور بقی کے اندر مدفون تھے. اور آپ نے فرمایا وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور عنقریب ہمیں بھی تم سے جا ملنا ہے. یعنی انسان کو جیسا کہ شریعت کی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے. اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں اپنا آخری گھر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں یاد آئے گا. انسان سب سے پہلے جس گھر میں ہوتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اس کی ماں کا پیٹ ہوتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس دنیا کے اندر وجود پاتا ہے جو اس کا گھر ہے، اور پھر اس گھر کو بھی اسے چھوڑ کے جانا ہے اور تب اس کا تیسرا گھر بنتا ہے. اور اس کے بعد جو آخری اور اصل گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، جنت یا جہنم کی شکل ہے. تو انسان جب قبرستان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ یہاں مدفون ہیں اور ہمیں بھی وہیں جانا ہے، جو ان کا ہوا ہے یا ان کی موت بھی ہے تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور ان سے جا ملنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور جب بھی جاتے تھے تو لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. کسی کی تدفین کے سلسلے میں بھی، کسی جنازے کے ساتھ بھی جاتے تھے تو وہاں جو وقت ہوتا تھا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ آخرت کی ان کو یاد دلاتے تھے. اور آپ نے یہ بات فرمائی وَوَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری یہ خواہش ہے ہوئی کہ میں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ جو ہمارے بھائی جنہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. صحابہ کرام جو وہاں موجود انہوں نے پوچھا کیا ہم لوگ تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی محفلوں کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کہ ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں. آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم لوگ میرے اصحاب ہو. یعنی دین کے اندر قوت کا رشتہ وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے صحبت کا رشتہ، یعنی صحابی ہونا. تم لوگ میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، بعد میں آئیں گے اور وہ ہم پر ایمان رکھیں گے، وہ اصل میں ہمارے بھائی ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ میں ان بھائیوں سے مل لیتا اس دنیا کے اندر. آپ نے فرمایا قالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتی یا رسول اللہ. تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول جو لوگ اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں تم انہیں کیسے پہچان پاؤ گے؟
आपने फरमाया अराइता लौ अन्न रजुलन लहु खैलुन गुर्रुन मुहज्जरा, जरा ये बताइए कि अगर किसी के पास कोई घोड़ा हो जिसकी पेशानी सफेद हो और उसके पैर के हिस्से भी निचले सफेद हो और वो तमाम पूरी तरह से काले और एकदम बिल्कुल सियाह घोड़ों के बीच में हो, तो क्या वो उन्हें पहचान नहीं पाएगा? तो लोगों ने फरमाया कि लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल वो उसे पहचान लेगा इसलिए कि उसका घोड़ा है। तो कहा भला या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया फ़इन्नहुम यातूना गुर्रन मुहज्जलीन मिनल वुज़ू व अना फ़रतुहुम अलल हौद, वो लोग आएंगे इस हाल में कि उनकी पेशानी रोशन होगी और उनके आदाए वुज़ू ये रोशन होंगे और मैं उनका इस्तक़बाल करूंगा हौज़ पर। यानी वुज़ू की फज़ीलत हुई कि वुज़ू करने की वजह से उनकी पेशानी रोशन होगी और उनके आदाए वुज़ू ये सब रोशन और ताबनाक होंगे। यही उस उम्मत का खासा होगा जिससे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे कि ये शख्स मेरी उम्मत का है, मुझ पर ईमान रखने वाला है। ये हौज़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद होंगे। वाना फ़रतहुम अलल हौज़, मैं अपनी उम्मत के लोगों का वहां पहुंचकर इस्तक़बाल करूंगा और उम्मती माशर के दिन हर शख्स परेशान होगा। लेकिन ये जब हौज़ का मौका आएगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों का इस्तक़बाल करेंगे हौज़ पर, तो उस वक्त समझो कि इंसानों की मुश्किलें अब खत्म होने को है, माशर की मुश्किलें वहां पे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद इंसान को जो मोमिनीन है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जगह दी है वो जन्नत को करेंगे इसी के बाद। तो ये हौज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनायत है और इसके अंदर जहाँ से मशरूब आ रहा है इसकी बहुत सारी बातें हैं जो बयान की गई हैं हदीस के किताबों के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें ऐसी मिलती हैं जिसमें हौज़ का बयान है और ये गैर की चीज है जिस पर हमें ईमान रखना है। और ये तमाम की तमाम सही हदीसों के अंदर और बहुत सारे मुताबिक सहाबा से इस तरह की हदीसें मनकूल हैं जिसके अंदर इसकी सिफत का बयान किया गया है। ये कितनी लंबी चौड़ी होगी, उसके अंदर जो मशरूब होगा वो कितना होगा, उसके प्याले कैसे होंगे, सारी बातें मुख्तलिफ हदीसों के अंदर बयान की गई हैं। लेकिन एक चीज ये भी हम सब ज़हन के अंदर रखें कि हौज़ पे वही लोग आएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को मानने वाले हैं और उसी की इत्तिबा करने वाले हैं। वो लोग जिन लोगों ने इस दीन के अंदर चीजें बढ़ा दी, चीजें नई पैदा कर ली, जो लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को छोड़कर नई नई बातें इजाद कर ली दीन के अंदर, उनको इस हौज़ पर आने से रोक दिया जाएगा। बावजूद कि उनके अंदर निशानी मौजूद होगी, यानी गुर्रन मुहज्जलीन होने की, कि उनकी पेशानी और उनके आदाए वुज़ू ताबनाक होंगे, इसलिए कि वो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, लेकिन उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, इसलिए उनको वहां से रोक दिया जाएगा। इस सिलसिले की हदीस मिलती है आना फरतुकुम अलल हौज़ मम्मर्रा अलैहि शरीब वमन शरिबा लम यज़मा अबदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों को इस्तक़बाल करूंगा हौज़ पर, जो शख्स वहां से गुजरेगा वो पिएगा, यानी उससे मशरूब से वो उसका शरबत उसे मिलेगा, और जो शख्स पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन वहां हमारे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा और वो लोग मुझे भी पहचान रहे होंगे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान रुकावट डाल दी जाएगी, वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो मैं कहूंगा इन्नहुम मिन्नी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज देंगे कि इन्हें आने दो। वहां साहब-ए-किराम वहां फरिश्तों का इंतजाम होगा जो ऐसे लोगों को रोक देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखेंगे ये मंजर तो कहेंगे उनसे कि इन्हें आने दो, ये हमारी उम्मत के लोग हैं। तो उनसे कहा जाएगा फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, उनसे कहा जाएगा उस वक्त कि इन लोगों ने क्या किया था तुम्हारे आपके बाद, इन लोगों ने क्या किया था, दीन के अंदर कैसी कैसी बातें इजाद कर ली थी, इसका आपको इल्म नहीं है। तो मैं कहूँगा सुहबन लिमन गय्यर बादी, दूर हो दूर, यानी ऐसे लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए जिन लोगों ने मेरे दीन के अंदर तब्दीली पैदा करनी थी। तो ये चीज हम समझें कि दीन को मिनवान अपनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की इत्तिबा की अहमियत भी इस हदीस से हम समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है इसकी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सही तरीके से समझें और उसकी हम सही इत्तिबा करें। देखेंगे हम कि इस जमाने के अंदर और कदीम जमाने से सिलसिला चला आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मुख्तलिफ फिरकों के जो सही किस्म की मौजूद किस्म की मनगढ़ किस्म की हदीसों को रवाज देते हैं।
हर मौजू के सिलसिले में, यहाँ तक कि वुदू की बात चल रही तो वुदू के सिलसिले में भी उनकी किताबों के अंदर हम देखेंगे तो हर उज़्व को धुलने के सिलसिले में या मसा करने के सिलसिले में अलग अलग किस्म की दुआएं मनक़ूल है और लिखी हुई है। बिल्कुल मनगढ़ंत किस्म की हदीस से लोगों ने लिया है और अपनी अपनी किताबों के अंदर लिख रखा है उससे। इस चीज को हम समझें। इसी तरह हज पर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे हुज्जाज इकराम परेशान होते हैं, तवाफ की हर चक्कर की अलग दुआ पढ़ने के लिए किताबें लिए हुए होते हैं और हर चक्कर में अलग अलग दुआएं पढ़ते हैं, इसलिए कि उनकी किताबों के अंदर ये चीजें लिख दी गई हैं जो हदीस से सही साबित नहीं है। इस जमाने में हम समझें कि हर वसाइल एलान बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, हर शख्स किसी की तकरीर को, किसी की बात को, किसी की बात को सुन सकता है और आवाम नहीं जानते हैं कि कौन सा अलिम कैसा है। उसकी बातें हम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग, अपनी जमात के भी बहुत सारे लोग गैरों की बातें सुनते हैं, उससे मुतासिर होते हैं और अपने दीन को, अपने ईमान को किसी हद तक बिगाड़ लेते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फज़ल करम है कि उसने हमारी जमात के अंदर बहुत बड़ी तादाद में उलमा को दिया है। आज के जमाने में खासकर हम देखेंगे कि उलमा की कसरत है जो हमको सही बातें बता सकते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम हम लोगों के ऊपर है, अहले बनारस के ऊपर, कि यहाँ उलमा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो सब के सब सलफी आलिम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हदीसों को पहचानने वाले, उसकी परख रखने वाले, उसका सही बयान करने वाले और उसका सही माना मफहूम मुस्तंबत करने वाले उलमा मौजूद हैं। तो हम बराह रास्त उनसे क्यों ना पूछें, इधर उधर हम क्यों भटकें। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर मौजूद हैं उलमा जिनको हम नहीं पहचानते कि कहाँ के हैं, क्या है, अवाम नहीं जानते। उलमा जान सकते हैं कि इसकी बात के अंदर कहाँ से जो फरेब चल रहा है, किस तरह की बातों के इजाफा कर रहा है, हदीसों के अंदर किस तरह की आमेजिश हो रही है, या कि कुरान करीम की तफसीर में किस तरह से तोड़मरोड़ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और सब कुछ उलमा करते हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और बिल्कुल आवाम को बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है कि वो सबकी बातों को न सुने। सबकी बातों को सुनेंगे, हर जगह जाएंगे तो उनका ईमान खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कि उलमा इज़्ज़ात जो हैं, मुदल्लिन जो हैं, वो बहुत कसरत से हैं और बहुत मजबूत हैं और उनके पास दज्जो फरेब के लोगों को गुमराह करने के बहुत सारे हथियार और कंडे मौजूद हैं जो सादा लोग मुसलमानों को, अहले हदीस लोगों को भी, अहले हदीस नौजवानों को भी वो मुतासिर कर रहे हैं और बहुत कुछ उनके ध्यान के अंदर ऐसा आ जाता है। लोग पूछते हैं कभी कभी या कुछ लोग भेजते हैं कि ऐसी बातें हैं, ये हमको बहुत पसंद आई। देखो तो वो आलिम, वो सही आलिम है ही नहीं, वो कहीं और का है, उसकी बातों के अंदर बहुत फरेब है तो लोगों को आगाह किया जाता है। लेकिन कोई पूछेगा तब उसे आगाह किया जाएगा। लेकिन कोई शख्स किसी को मुतासिर है, उसकी बातें वो सुन रहा है और बराबर सुन रहा है, धीरे धीरे सेहत उसका ज़हन खराब होता चला जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हदीस के अंदर, हदीस की परख होती है कि कैसे हदीस को परखें, कैसे जाने कि हदीस सही है या ज़ईफ है, ये किस लायक है, काबिल कबूल है कि नहीं है। उसके बाद हदीस का मफहूम होता है कि उलमा सलफ इस हदीस के मफहूम को कैसे लिया है। इसी तरह कुरान करीम की आयत होती हैं, कुरान करीम की आयत की तफसीर कुरान करीम की आयत से होती है या हदीस से होती है। इसके अलावा अगर कोई अपनी राय से तफसीर करता है तो उसके अंदर बहुत कुछ इजाफे होते हैं जो सही और नहीं होते हैं, हल्के हरगिज़ नहीं होते हैं। तो आजकल के जो उलमा मुदल्लिन हैं, गुमराह करने वाले उलमा जो मौजूद हैं और यूट्यूब पर उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो मैं आगाह करता हूँ और हर मुसलमान को आगाह होना चाहिए कि हम उनकी बातों को न सुने, उन जगहों पे न जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि हमारे दरमियान में उलमा की कसरत मौजूद है जो उलमा सलफ से जोड़ने वाले हैं, हदीस की परख रखने वाले हैं, हदीस के सही मफाहिम को बयान करने वाले हैं। तो उनसे हम अपने रास्ते को जोड़ें। कोई भी बात पूछना हो उनसे हम रद्द कायम करें, उनसे हम सवाल करें और उन्हीं की बातों को पूछें। अपने उलमा क्या कम है? हिंदुस्तान के अंदर, बड़े सगीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो अच्छी से अच्छी तकरीर करते हैं, बेहद उम्दा किस्म का आवाज होता है उनके अंदर, हदीस की सीधी और सही बातें उनके अंदर होती हैं, कहीं से कोई दर्द फरेब नहीं होता है। तो इस चीज को हम समझें। आज के जमाने में अगर इंसान बहक गया किसी और की बात सुन के तो उसका बहुत बड़ा खसारा होगा, इसलिए कि उसका दीन भी गलत होगा और दुनिया के अंदर भी उसे जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो हम उससे आगाह रहें। और हदीस के अंदर तमाम तर बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी हैं। कोई एक हदीस कहीं से किसी मौजू को उठाएंगे उसके अंदर बहुत सारे फवायद होते हैं। या मैंने ये हदीस को मुंतखब किया तो वुजू की फजीलत के सिलसिले में मुंतखब किया, लेकिन इसके अंदर बातें बहुत हैं। अगर इंसान बयान करने वाला शख्स बयान करता चला जाए तो बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं जो वाक़ई नसीहत की बातें हैं, अवाम के समझने की चीजें हैं और उससे फायदा उठाने की चीजें हैं। वो फवायद को हम अगर हासिल करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के अंदर इतनी वुसअत मौजूद है, इतनी बेपनाह
حدیثیں ہیں، اس کے بے پناہ فائدے ہیں، تو ہم اسی کے اندر سمٹ کے رہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی باتوں کے اندر جھانسے کے اندر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دین کو برباد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.